ٹائمز میں خوش آمدید۔ وقف ایکٹ پر سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے اور جن لوگوں نے وقف ایکٹ 1995 کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی تھی، ان تمام لوگوں کو آج چیف جسٹس آف انڈیا نے سخت پھٹکار لگائی اور ان کی عرضی کو سننے سے انکار کر دیا جب سولیسٹر جنرل کی طرف سے سرکاری وکیل کی طرف سے بہت زیادہ ریکویسٹ کی گئی۔ تب چیف جسٹس آف انڈیا نے اور جسٹس اے جے مسیح کی بینچ نے مرکز کو اور اسٹیٹ کو نوٹس بھیج دیا ہے۔ آپ اپنے اسکرین پر دی ہندو اور دوسرے میڈیا ہاؤسز کی اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں کہ وقف ایکٹ 1995 کے خلاف پیٹیشن سپریم کورٹ نے مرکز اور ریاستوں کو نوٹس ایشو کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اتراکھنڈ کی حکومت کو بھی سپریم کورٹ نے سخت پھٹکار لگائی ہے، کیونکہ اتراکھنڈ کی سرکار نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا اپمان کرتے ہوئے سپریم کورٹ کی ہدایت کے سپریم کورٹ کے اسٹے کے خلاف جاتے ہوئے قیدگاہ کو زمین دوز کر دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ اس پر بھی سپریم کورٹ آف انڈیا نے اتراکھنڈ کی سرکار کو سخت پھٹکار لگائی ہے۔ پورا معاملہ کیا ہے آگے بتائیں گے، اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ 1995 کے وقف ایکٹ کا معاملہ کیا ہے۔ دراصل سپریم کورٹ آف انڈیا میں جب پارلیمنٹ سے پاس ہوئے وقف ایکٹ 2025 کے خلاف مسلمانوں نے پیٹیشن دائر کی اور مسلمانوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہا کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 مسلمانوں کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے اور اس قانون پر سپریم کورٹ آف انڈیا کو اسٹے لگانا چاہیے، اس قانون کو ریجیکٹ ہونا چاہیے۔ یہ قانون ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قانون مسلمانوں کے مذہبی معاملے میں مداخلت ہے، انٹرفیئر ہے، آئین کے خلاف ہے۔ اور جب بھی مسلمانوں کی طرف سے کوئی آواز اٹھائی جاتی ہے، مسلمان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، سڑکوں پر اترتے ہیں یا پروٹیسٹ کرتے ہیں یا پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو ہندوؤں میں ایک ایسا طبقہ ہے جس کو مسلمانوں کا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی برداشت نہیں اور وہ اس کے کاؤنٹر میں لگ جاتا ہے، وہ کبھی سڑکوں پر اتر جاتا ہے، کبھی کچھ اور کرتا ہے۔ اور ایسے ہی گروپ نے سپریم کورٹ میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور ان لوگوں نے 2-3 طرح کی پیٹیشن دائر کی۔ ایک پیٹیشن دائر کر کے ان لوگوں نے یہ کہا کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 بالکل صحیح ہے اور ہم اس کے سمرتھن میں ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے کچھ اور پیٹیشن دائر کر کے کہا کہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 1995 اللیگل ہے، آئین کے خلاف ہے اور اس کو سپریم کورٹ کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2013 کے خلاف بھی پیٹیشن دائر کی۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وقف امینڈمنٹ ایکٹ کو لایا جا رہا تھا پارلیمنٹ میں، اس قانون کو پیش کیا گیا تھا، تو مسلمانوں نے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے دیش بھر کے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ QR کوڈ کے ذریعے JPC کو ای میل بھیجیں، اپنی رائے بھیجیں اور ایک پیغام دے کہ مسلمان اس قانون کو منظور نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اپیل پر 5 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں نے ای میل بھیج دیا JPC کو، اور جب مسلمانوں کی طرف سے ای میل بھیجا جا رہا تھا تو رائٹ ونگ اور ہندو سماج کے لوگوں نے بھی وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے سمرتھن میں حکومت کو JPC کو ای میل بھیجنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے بھی اپنا QR کوڈ جاری کیا، ان کے پوجا پاٹ کا کہیں پنڈال لگا ہوا تھا تو وہاں پر ان لوگوں نے بڑا بڑا QR کوڈ لگا دیا کہ لوگ اسکین کر کے اس کے سمرتھن میں اپنی رائے بھیجے، ای میل بھیجے۔ تو یہ ان لوگوں کی سچائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ مسلمان اگر پرابلم میں ہے تو مسلمان پرابلم میں رہے، اس کا وہ سمرتھن کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہی معاملہ یہاں پر بھی ہوا۔ نکھت اپادھیائے دلی کے رہنے والے ایک شخص ہے، انہوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں 1995 کے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے اس کو چیلنج کرنے کے لیے پیٹیشن دائر کر دیا اور اس فہرست میں سب سے بڑا نام ہے ایڈوکیٹ ہری شنکر جین کا۔ اس شخص کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ باپ اور بیٹا مل کر کے مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی پیٹیشن دائر کرتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو الجھانے کا کام ہی روز مرے کا ہے ایڈوکیٹ ہری شنکر جین کا۔ اور وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے معاملے میں بھی ایڈوکیٹ ہری شنکر جین نے بھی سپریم کورٹ آف انڈیا میں پیٹیشن دائر کر کے کہا کہ 1995 کا جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کو ریجیکٹ ہونا چاہیے، وہ انہیں منظور نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ آف انڈیا میں ان لوگوں نے پیٹیشن دائر کر کے کہا کہ 1995 کا وقف امینڈمنٹ ایکٹ آئین کے آرٹیکل 14, 15, 21, 25, 26, 27 اور 300A کے خلاف ہے، اسے منسوخ کر دینا چاہیے، اسے ریجیکٹ کر دینا چاہیے۔ آئین میں جو برابری دی گئی ہے، آئین میں جو انصاف
इंसाफ है, आइन में जो जस्टिस है, आइन में तमाम तबका को एक बराबरी और एक सम्मान जो दिया गया है, उसके खिलाफ है 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यह भी दलील दी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सिर्फ मुसलमानों की जायदाद और प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है, उसके नज़्म नस्ख के लिए बनाया गया है, जबकि हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत, सिख मत, यहूदियत, बहाइयत, ज़रतश्तियत और ईसाइयत के जो मानने वाले हैं उनके लिए ऐसा कोई भी कानून मौजूद नहीं है। लिहाजा ये जो कानून है मुकम्मल तौर पर सेकुलरिज्म और कौमी यकजहती की सालमियत के खिलाफ है, यूनिटी के खिलाफ है, इसलिए इस कानून को रिजेक्ट होना चाहिए। इस तरह की दलील इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दी। इन लोगों ने यह भी कहा कि आइन के आर्टिकल 29 और 30 के तहत अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को जो हुकूक दिए गए हैं वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत नहीं आते कि मुसलमानों के लिए वक्फ पर अलग कानून बनाया जाए और दूसरों के लिए ऐसा कानून न हो। इन लोगों ने इस तरह की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दलीलें दी, गुमराह करने की कोशिश की और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जे. मसीह की बेंच ने इस पर सुनवाई की और चीफ जस्टिस ने सबसे पहले यही सवाल उठाया कि 1995 के एक्ट को इतनी ताख़ीर से क्यों चैलेंज किया जा रहा है। इस तरह की सुनवाई हम नहीं कर सकते हैं। जस्टिस ए.जे. मसीह ने कहा, हम इसे ताख़ीर की बुनियाद पर रिजेक्ट कर देंगे। आप 1995 के एक्ट को 2025 में चैलेंज कर रहे हैं। हम 1995 के कानून को अब क्यों सुने, उसकी आज ज़रूरत क्या है। तो जो पिटिशनर थे उनके वकील ने कहा कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुनवाई की थी, नोटिस इशू किया था, तो ताख़ीर इशू नहीं है। उसके बाद सरकारी वकील जो वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने यह भी दलील दी कि पिटिशन सिर्फ 1995 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज नहीं कर रही है, बल्कि इस पिटिशन में 2013 और 2025 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को भी चैलेंज किया गया है, इसलिए ताख़ीर का मसला नहीं है। उसके बाद सरकारी वकील कह लीजिए सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटिया ने खड़े होकर के कहा कि अगर दरखास्त को पहले वाली दरखास्त के साथ जम कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तब इस पर सुनवाई हो सकती है, तब ताख़ीर का इशू नहीं है, क्योंकि 2025 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के भी इन लोगों ने पिटिशन दायर की है, 2013 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को भी इन्होंने चैलेंज किया है और 1995 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को भी चैलेंज किया गया है। उसके बाद सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भारती की बात को मानते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जे. मसीह ने कहा कि इन तमाम अर्जियों को एक साथ सुना जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने 2025 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया है उनकी पिटीशन के साथ, उनकी अर्जियों के साथ इस अर्जी पर सुनवाई नहीं की जाएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मरकजी हुकूमत को और स्टेट सरकार को नोटिस इशू करके जवाब मांगा है 1995 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। ये तो एक खबर हुई और आइए अब आपको बताते हैं दूसरी खबर। दूसरी खबर है देहरादून की। देहरादून में 150 साल पुरानी एक दरगाह है जिसको कमाल शाह दरगाह के नाम से जाना जाता है और पिछले महीने यानी अप्रैल की 26-27 अप्रैल की रात में बुलडोजर के जरिए उस पूरी दरगाह को जमीन दोज कर दिया गया, सरकार ने मुनहदिम कर दिया और जैसे उसको मुनहदिम किया गया उसके बाद एडवोकेट फुजैल अयूबी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दायर की और ये मामला भी पहुंचा बी.आर. गवई के पास और जस्टिस ए.जे. मसीह के पास और मई के महीने में ही 15 तारीख को इस पर सुनवाई हुई और बी.आर. गवई ने उत्तराखंड की सरकार को इस पूरे मामले में ज़बरदस्त फटकार लगाई और कहा जब 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर स्टे लगा रखा है, खासतौर पर वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, उसके हवाले से साफ तौर पर स्टे मौजूद है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, उसके स्टेटस के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, जिसका वक्फ का स्टेटस जो है वो बरकरार रहेगा। फिर आपने कैसे इस दरगाह को मुनहदिम कर दिया। तो बी.आर. गवई ने ज़बरदस्त फटकार लगाई हुकूमत को, उत्तराखंड की सरकार को और कहा यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अपमान है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बी.आर. गवई ने यह भी कहा कि जब वाज़े तौर पर फैसला आ चुका था, खुद सरकार ने यकीन दहाई कराई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर फिलहाल अमल नहीं किया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस पर बहस हो रही है। उसके अलावा पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
जस्टिस खन्ना ने वाज़े लफ्ज़ों में 2 सेक्शन पर पाबंदी लगा दी थी और पहला था कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जो भी जायदाद वक्फ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, तो उसके स्टेटस को बाकी रखा जाएगा, डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। दूसरे, वक्फ काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में नन मुस्लिम मेंबरान की बहाली पर भी रोक लगाया गया था। तो फिर आपने कैसे 150 साल पुरानी दरगाह को ज़मींदोज़ कर दिया? एडवोकेट कपिल सिब्बल भी पेश हुए थे और उन्होंने बीआर गवई के सामने दलील दी और कहा कि 1982 में ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में इस कमाल शाह का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वक्फ बोर्ड में इसका इंदिराज पहले से मौजूद है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसके बावजूद वक्फ बाय यूज़र के कानून की धज्जियां उड़ाई गई और देहरादून की म्यूनसिपैलिटी ने इस कमाल शाह दरगाह को ज़मींदोज़ कर दिया, जो कानून की खिलाफ वर्जी है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई गई। मांग यह भी की गई थी कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो दरगाह की जगह है, उसको दरगाह के तौर पर बाकी रखा जाए, उसकी अदसरे नौ तामीर की जाए। लेकिन फ़िलहाल इस पर जो सुनवाई है वो पेंडिंग में है। अगले दिनों में मज़ीद इस पर सुनवाई हो सकती है। और ये सबसे बड़ी खबर सामने आई कि 1995 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जिन लोगों ने चैलेंज करने की कोशिश की थी, उनको फटकार लगाई गई है। अब अगली सुनवाई कब होगी, इसकी डेट तो आज नहीं बताई गई है, लेकिन नोटिस ज़रूर इशू कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस ने इन लोगों की अर्जी को सीरियस नहीं लिया। सॉलिसिटर जनरल के कहने पर नोटिस ज़रूर इशू कर दिया है और उम्मीद यही है कि इनकी पिटीशन को सीरियस नहीं लिया जाएगा। ऐसे भी इनकी पिटीशन में अब कोई जान नहीं रह गई है। जिस एजेंडा के लिए, जिस मकसद के लिए इन लोगों ने 1995 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया है, सरकार ने तो पार्लियामेंट में कानून ला करके 1995 और 2013 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर ही रखा है। फिर क्यों ये लोग चैलेंज कर रहे हैं? ये बात समझ से बालातर है। हाँ, समर्थन में इनकी एप्लीकेशन तो समझ में आती है कि लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बने, मुसलमानों को वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा न हो सके। और इन्होंने जो दलीलें दी है उसमें तो ज़रा बराबर कोई सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। क्योंकि इस देश में जितने भी धर्म हैं उन सब का अपना अपना एक बोर्ड है। हिंदुओं का बोर्ड है, सिखों का बोर्ड है, ईसाइयों का बोर्ड है। इसलिए ये जो दलील इन लोगों ने दी है कि सिर्फ मुसलमानों का वक्फ बोर्ड क्यों है, दूसरों का क्यों नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून है, दूसरों के लिए नहीं है, यह आइन के खिलाफ है, ये सरासर झूठ और हकीकत के खिलाफ है। और उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक मरतबा